Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। आज एठार उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद, आमे गतकाली महाराज भारतंकर किपरि अति उन्नत स्थिति आध्यात्मिकता रे अत्यंत उन्नत स्थिति पतन हैला से संबंध रे आलोचना करथिले। तबे भरत महाराज जे कि भगवान कृष्णकर सेवा प्रति आकृष्ट है, से युवावस्था रे राज ऐश्वर्य, परिवार, पत्नी, संतान एवं राज सुख को परित्याग करी वन को जाई से भगवान कर आराधना रे समय अतिबाहित करुथिले। किंतु तांका जीवन रे गोटे भूल पाई तांको आहुरी दुईटी जन्म नवाकू पड़ला। से भगवान को प्राप्त हवा पाई आहु दुईटी जन्म नवाकू पड़ला। तेणु आध्यात्मिक जीवन रे आमे केते सतर्क रहिबा आवश्यक, विशेष भाव में भक्त मान ये बहुत आवश्यक। जे माने भक्ति साधना रे से माने सबु समय रे सतर्क रही। टिके भूल पाए जेपरि भरत महाराज पतन हो गला, आमे से शिक्षा ग्रहण करवा जेपरि आमर साधना मार्ग रे सेपरि कौन सी भूल बा त्रुटि न हुए। आ ये भूल त्रुटि आसुचे आमर आसक्ति, आमर जो भौतिक आसक्ति मान रही, ये भौतिक आसक्ति आमको भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हवा को देउन। एवं भरत महाराज जदिव से भौतिक आसक्ति को त्याग कर देले, जहाँ कि दुस्तेज्य थिला, त्याग करवा अति कठिन थिला। किंतु गोटे मृग शावक प्रति तांकर जो आसक्ति उत्पन्न हो गला, ताही तांकर पतनर कारण है। तेबे एठारे प्रश्न उठुची जे मृग शिशु सद्य मातृगर्भरु पतित होइछि एवं नदीर जल रे पतित होइछि, भासी भासी जाउछि एवं जेकोनोसी समय रे तार मृत्यु हो पारे। भरत महाराज से दृश्य देखी से मृग शिशुटी को जलरू उठे आनी, तार जीवन रक्षा करने एवं से भाविछंती जे वर्तमान ए शिशुर कहीं नहंती, तार शिशुर मृग शिशुर मातार सद्य मृत्यु होइछि, तेणु मृग शिशुर कहीं नहंती, तेणु मु ही तार एकमात्र आश्रय। तेबे मृग शिशुर से पालन करिसंती एवं मृग शिशु प्रति एते आसक्त ही पड़िसंती, शेषरे से तांकर भगवान पूजा उपासना एथिरे अवहेला प्रदर्शन करिसंती। जेपरि आमे देखू जे अनेक समय रे गृहस्थ भक्त माने समान दीक्षा ग्रहण करने पर
ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଗୃହ ଆସକ୍ତି ହେତୁ। ତେଣୁ ଭରତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେଇ ହରିଣ ବା ମୃଗ ଶାବକର କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃଗ ଯୋନି ଲାଭ କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଭୁଲ କେଉଁଠାରେ ହେଲା? ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଭରତ ମହାରାଜ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏବଂ ସେ ଦୟା ଭାବ ହେତୁ ସେ ମୃଗ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ। ତେବେ ଆମେ ଯାହାପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବେ ଦୟା କୃଷ୍ଣ ନାମ ସର୍ବଧର୍ମ ସାର, ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସାରବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଦୟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ? ଜୀବେ ଦୟା, ସେ ଦୟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ? ଆମେ ସେଟା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସଂସାରରେ ଯଦି କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଔଷଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ କେହି ତାକୁ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟରେ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏସବୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଯେ ଆମର ଦୟା ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟା ଭାବ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି, ଆମେ ତାକୁ ଦିନେ ଅଧେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବାନି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି, ଆମେ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ବସ୍ତ୍ର, ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। ବା ଜଣେ ଔଷଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି, ଆମେ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ଔଷଧ, ସାରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବାନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ସେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆମେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବାନି, କର୍ମ ଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବାନି। ଆମର ଏ ସାହାଯ୍ୟ ତାର ଶରୀର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏପରି ଦୟା ଭାବ ଇଏ ସାମୟିକ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦୟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଦୟା ହେଉଛି
जदि आमे जो व्यक्तिटी निजर पूर्व कर्म फल हेतु संसार रे कष्ट दुख भोग करुछि आमे जदि ताकू कौन सी उपाय बतई दे परिबा से व्यक्तिटी जहा फल रे तार से कर्म फल रही से नष्ट हो जीव एवं से व्यक्ति आउ कौन सी पाप कर्म करबनी जीवन रे एवं कर्म फल मुक्त ही से भगवान कर आराधना करिवो एवं शेष रे भगवान को प्राप्त हो तार दुख सबुदिन पाई समाप्त हो जे पर्यंत आमे आमर दुख को सबुदिन पाई समाप्त न करिचे बा तार उपाय न करिचे ए दुख जन्म पर जन्म लगी रही ये हूँ संसार नियम आमे ए जन्म रे दुख भोग करुचे निजर कर्म फल हेतु पुणी पर जन्म रे आमे पुणी मध्य से दुख भोग करिया तापर जन्म रे मध्य ठीक सही दुख भोग करिया ये हूँ संसार नियम एथिरे आमे कौन सी परिवर्तन आनी परिबा किंतु आमे जदि सेपरी व्यक्ति को एपरी मार्ग प्रदर्शन करिबा जहा फल रे तार दुख सबुदिन पाई दूर हो से होची प्रकृत दया तेणु भरत महाराज ए क्षेत्र रे से दया भाव प्रदर्शन कले मृग शिशु प्रति अर्थात तार शरीर रक्षा कले किंतु मृग शिशु को तार कर्म फल भरत महाराज रक्षा करि पारले कारण आमे कौन से पशु बा पक्षी मान को भगवत चेतनशील करि परिबा पशु पक्षी माने भगवत चेतनशील हो परिबानी बा आमे तंको उपदेश दे परिबा तेणु अन्य को कृष्ण चेतनशील करैबा शरीर धारण मुक्त करवा ये हूँ प्रकृत दया किंतु पशु पक्षी मान को आमे सेपरी करि परिबा किंतु मनुष्य मान को आमे करि परिबा मनुष्य मान को आमे उपदेश दे परिबा मार्ग प्रदर्शन करि परिबा जहा फल रे से माने ए भौतिक संसार दुख व कष्ट रु सबुदिन पाई मुक्त हो पारे तेणु भरत महाराज मृग शिशुर प्राण रक्षा कले तार अर्थ तार शरीर को रक्षा कले किंतु मृग शिशु को तार कर्म फल रु रक्षा करि पारले मृग शिशु तार कर्म फल बहन करी जन्म जन्मांतर से भोग करिवो तार दुख कष्ट जहाँ ता जीवन रे रही जेपरी ए जन्म रे मृग शिशु जन्म हवा मात्र से मृत्यु मुखरे पतित होता तेणु पशुपक्षी मानकर मध्य कष्ट रही ए नुहे जे केवल मनुष्य मानकर कष्ट रही 84 लाख जीवजनी समस्त कष्ट रही किंतु मनुष्य जनी हूँ दुर्लभ जन ये मनुष्य जन्म रे आमे चाहिए सबुदिन पाई आमर दुख को दूर कर दे पारिबा कृष्ण चेतनशील है तेणु आमे जदि क्या कृष्ण चेतनशील कर पारिले भगवत भक्ति मार्ग रे आनी पारिले सी हूँ प्रकृत दया जहाँकि भरत महाराज मृग शिशु प्रति से वास्तविक दया प्रदर्शन कर पारि नथिले ये दया थिला सामयिक आ तार परिणाम से मृग शिशु प्रति आकृष्ट हेले आसक्त हो गले एवं शेष रे तांका निजर पतन
तेणु श्रील प्रभुपाद कहते जे प्रकृत दया हूँ आम जिते क्या कृष्ण चेतनशील कर भगवान को सेवारे नियुक्त कर ताहले से व्यक्तिर दुख सबुदिन दूर हो तेरे भरत महाराज ये भूल हो गला से मृग शिशु को कृष्ण चेतनशील कर पारे आ द्वितीय भूल है कि से भाविले जे तांका व्यतीत मृग शिशुर आउ कहीं रक्षक नहांती तार अर्थ से सेतेबेले भगवान को भूली गले जे भगवान समस्त रक्षक पालक पिताहंगस्य जगत माता धाता पितामह भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहते मु समस्त जगतर माता धाता पितामह सबु किछि से समस्त पालन पोषण करुछन्ति से विश्वम्भर जे भक्त तार मध्य पालन पोषण करुछन्ति जे अभक्त तार मध्य पालन पोषण करुछन्ति तेणु भक्त सबु समय रे मन रखिबो जे भगवान ही समस्त रक्षक आमे नु जितेबले आम निजको भगवान के स्थान रे स्थापन करवा सेतेबले आमर भूल हो आमर पतन आरंभ हो भक्ति मार्ग से आम सब समय सावधान रहा आवश्यक तेणु भरत महाराज चरित्र आम ये शिक्षा लाभ कर आम किपरि सावधान रहा भक्ति मार्ग रे जे कृष्ण ही समस्त पालक एवं रक्षक आमे तंकर सेवक मात्र आमे कहार रक्षक नुह तेणु आमर एकमात्र आसक्ति भगवान कृष्ण के चरण रे रहिबा आवश्यक आमे जेतेबेले भौतिक संसार रहीचे परिवार मध्य रे परिवार प्रति आमर कर्तव्य आमे संपादन करिवा किंतु आसक्त हवा भगवान कृष्ण के प्रति से आसक्ति हमको भगवान कृष्ण के निकट को नहीं जीव पारिवारिक आसक्ति हमको भौतिक संसार बारंबार पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम ये बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु बारंबार मातृगर्भरे आश्रय ग्रहण कर तेणु भौतिक आसक्तिर ये हूँ परिणाम किंतु कृष्ण के प्रति आसक्ति आमको भौतिक संसार दुखरु सबुदिन मुक्त कर दो तेणु भरत महाराज ये सामान्य भूल से मृग शरीर ग्रहण कले परवर्ती जन्म रे एवं मृग शरीर पर जेहेतु से तंकर मने थिला पूर्व जन्मर इतिहास तेणु मृग शरीर रही मध्य से स्थिर कले आउ सेपरी भूल करेंगे तेणु आम गतकाली आलोचना करुले किपरि भरत महाराज मृग शरीर प्राप्त ही मृग मान मेल रहिलेनी से पुल आश्रम जो पूर्व जन्म से तपस्या करुले सेठारे आसी आश्रम रही भगवान कथा श्रवण कले मृगजनी रे भक्त साधु मान मुखर अनेक समय देखा जाए जिते भागवत कथा होता है बेले बेले कौन सी कुकुर बा कौन सी गाई बा षंढा आसी बसी जाती भागवत कथार एभली देखा
ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଘଉଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଯେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭରତ ମହାରାଜ ମୃଗ ଜନ୍ମରେ ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ ଏବଂ ମୃଗ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭରତ ମହାରାଜ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶୁଚିନାଂ ଶ୍ରୀମତାଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଭିଜାୟତେ, ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଯାହାର ପତନ ହେଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ବା କୌଣସି ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେ ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଇଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ଜନ୍ମରେ ତାର ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଭରତ ମହାରାଜ ପରଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଙ୍ଗିରାସ ଗୋତ୍ରର ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରମ ବିଦ୍ୱାନ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତା ସହିତ ସେ ପରମ ବିନୟୀ, ସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତର ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଂ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନକୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଭଗବାନ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେ ଏ ତତ୍ଵକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ବିନୟୀ, ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ, ସହିଷ୍ଣୁ, ସହନଶୀଳ, ତା ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ମହାରାଜ ଭରତଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେ ପିତା ସେ ଏହିପରି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପରମ ସହିଷ୍ଣୁ, ବିନୟୀ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଗୁଣମାନ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ପତ୍ନୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କର 9ଟି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ କନିଷ୍ଠା ପତ୍ନୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠା ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭରୁ
तांकर दुईटी संतान उत्पन्न होते जमज संतान जे कि गोटे पुत्र आ गोटे कन्या। तेणु द्वितीय कनिष्ठ पत्नी पुत्र होचंती महाराज भरत। तेणु महाराज भरत ब्राह्मण परिवार रे ब्राह्मणकर कनिष्ठ पत्नीकर पुत्र रूप में उत्पन्न है। किंतु जेहेतु महाराज भरतंकर पूर्व जन्मर वृत्तांत तांकर मन रही मृग जन्म रे मन रही एवं जो ब्राह्मण परिवार जन्म ग्रहण कले सेतबेले मन रही पूर्व जन्मर कथा जे से किपरि गोटे भूल पाई तांकु द्वितीय थर वर्तमान जन्म नेबा पड़ुछि। तेणु से भाविले जे भौतिक संसार रे जो परिवार वर्ग बा संसारी लोक माने समस्ते भगवान भक्त नुहंती। सेमानकर चिंताधारा भिन्न भिन्न। तेणु सेमानक संसर्ग रे पुणी आउ थरे जेपरि तांकर पतन न हुए सेथिपाई भरत महाराज सतर्क हो गले। कारण संग दोष ये हूँ बहुत बड़ समस्या। आमे जेपरि व्यक्तिर संग करिबा आमर आचरण सेपरि हो। आमे जदि भक्त मानकर संग करिबा आमे भक्त हो जावा। आमे जदि अभक्त मानकर संग करिबा आमे अभक्त हो जावा। तेणु जितेबाला चैतन्य महाप्रभु को भक्त माने प्रश्न कले जे वैष्णवर आचरण किपरि हवा उचित। तेणु प्रथम कथा चैतन्य महाप्रभु कहले असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। जे असत्संग त्याग करवा ये हूँ वैष्णवर आचरण। जे वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु बा कृष्णकर भक्त से केतेबेले हेले असत लोकंकर संग करिबन। कारण सेमानकर संग गले वैष्णवर पतन निश्चित। तेणु भरत महाराज चिंता कले जे जो माने भक्त नुहंती मु जदि पुणी आउ थरे सेमानकर संग करी हुए तो आउ थरे मोर पतन हो। मु वर्तमान द्वितीय जन्म नेली मोर सामान्य भूल पाई पुणी ए जन्म जदि मोर पतन हम ताहले असुविधा हो। तेणु से जन्मरु सतर्क हो गले भरत महाराज। सतर्क ही कौन कले जदिओ से कथा कही पारुथिले जदिओ से देखि पारुथिले जदिओ से सुनी पारुथिले किंतु से मुकवत आचरण कले जन्मरु। जेपरि से किसी मूक बधिर अंध जेपरि से कथा कही पारु नाहंती किसी शुणी पारु नाहंती बा किसी देखि पारु नाहंती जानी शुणी एपरि आचरण से आरंभ कला। जदि ये सबु किसी से करि पारुथिले किंतु जानी शुणी एपरि आचरण जतले आरंभ कले तांकर पिता से देखिले जे तांकर पुत्र जड़वत आचरण करुछ सेतिपई तांकर नाम हला जड़ भरत। आमे जो जड़ भरत उपाख्यान रही विषय वस्तु
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଡ଼ ଭରତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଯେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଏପରି ମୂକ ବଧିର ଅନ୍ଧର ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପିତା ଭାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଭରତ, ଯିଏକି ଜଡ଼ ଭରତ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ସେ ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ମୂକ ବଧିର ଅନ୍ଧର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଚରଣ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧତା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏସବୁ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଚରଣ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ ଦମ ତପ ଶୌଚ କ୍ଷାନ୍ତି ଆର୍ଜବମେବ ଚ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆସ୍ତିକ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଜଡ଼ ଭରତ। ଜଡ଼ ଭରତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପିତା ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ଆସି ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବୁନ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ମାଟିରେ ହାତ ଧୋଉଥିଲେ, ମାଟି ଘଷିକି ହାତ ଧୋଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଭରତ ତାର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଶୁଣି। ତାଙ୍କର ପିତା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପରେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ହାତ ମାଟି କରିବ, ତାପରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଉଥିଲେ। ହାତରେ ମାଟି ଲଗାଇବା ଆଉ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କରି ତାପରେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ପିତା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସଦାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଏ ଜଡ଼ ଭରତ ସବୁ ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ପିତା ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇନଥିଲେ। ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଜାରି ରଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସଂସ୍କାର କରିବା କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କାର ଆଦି, ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଆଦି, ସେସବୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଭରତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଚରଣରେ ବନ୍ଧା ହେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଦିନେ ଦିନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆମେ ଯେତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଭୁଲେନି। ଆମେ ସଂସାରରେ ମଗ୍ନ ହେଇ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏ ସଂସାରରେ ରହିବା,
अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालय शेषां जीवितुम् इच्छन्ति किं आश्चर्यं अतः पर। जेतेबेले यक्ष युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न कले ते संसार रे आश्चर्य कौन, सबुठार बड़ आश्चर्य कौन। सेतेबेले युधिष्ठिर महाराज यही उत्तर देथिले कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालय। आमे प्रतिदिन देखुचे अहनि अहनि, प्रतिदिन कहीं ना कहीं मृत्यु लोक को जाऊँच, जमलोक को जाऊँच, मृत्यु होउछि। किंतु आमे भावुचे आमर केबे मृत्यु हो, आमे सबुदिन एठी बंची रहिबा, जीवित रहिबा। ये होछि आमर भ्रम। मृत्यु को आमे भूली गले मध्य मृत्यु केबे आमको भूलिबनी, से ठीक समय आसी उपस्थित है। तेणु जड़ भरतर पिता कर मृत्यु समय आसी उपस्थित है। तेणु से जेतेबेले मृत्यु वरण कले, पितांकर मृत्यु पर तांकर जो पत्नी थिले कनिष्ठ पत्नी से सह मृत्यु वरण कले, अर्थात स्वामींकर अग्नि रे निजे झास देला। झास दबा पूर्व से निजर पुत्र एवं कन्या को ज्येष्ठ पत्नी, ज्येष्ठ सपत्नी तांको अर्पण कले, दायित्व तांको अर्पण करी से स्वामी का सह मृत्यु वरण कले। तेबे जेतेबेले जड़ भरतर पिता मातांकर मृत्यु हो गला, तेणु तांकर जो भ्राता माने थिले, ज्येष्ठ भ्राता माने, से माने देखिले जे जड़ भरत ये मूक बधिर अंध, तेणु से माने जड़ भरत प्रति उचित व्यवहार प्रदर्शन कले, जहाँकि संसार स्वाभाविक। से माने जड़ भरत को विभिन्न कार्य नियोजित कले, कृषि कार्य। जड़ भरत जदिओ कृषि संबंध में अनभिज्ञ, से जानी ना, किंतु तांकर भ्राता माने तांको कृषि कार्य नियोजित करी तांको केवल खाद्य प्रदान करुथिले। आ से खाद्य किपरि थिला ना, जो खाद्य जली जाइथिबो, जाहाकु केही खाइबेनि, सेपरि खाद्य को जड़ भरत को अर्पण करुथिले। खुद कणार जो तैयारी होइथिबो खाद्य जाऊ, सेपरि खाद्य तांको प्रदान करुथिले, बा जो थे पोक पड़े जो चाउल सेपरी चाउल तांको प्रदान करुथिले खाद्य। किंतु जड़ भरत जेहेतु आध्यात्मिक चेतना रे अति उन्नत स्थिति रे थिले एवं से भावुथिले जे मु होची शरीर नुहे, मु होची दिव्य आत्मा। तेणु दिव्य आत्मार चेतना रे थिले, सेथिपाई तांके प्रति एतादृश व्यवहार रे से दुखी नथिले। से आनंद रे जहाँ तांकर भ्राता माने अर्पण करुथिले से खाद्य को से ग्रहण करुथिले। अनेक समय भ्राता माने तांको कुवाक्य प्रयोग करथांती तांके प्रति। अन्य साधारण लोक माने विभिन्न प्रकार कुवाक्य प्रयोग करिबा, तांके ऊपर अत्याचार करिबा, ए सब सत्य जड़ भरत सब किछि सहन करि जाउथिले। आमे देखु साधारण भाव में कौन सी व्यक्ति यदि अति सहनशील क्या किसी कहूनी तापर अधिक लोक अत्याचार करते
ये हूँ संसार नियम। तेणु जड़ भारत जेहेतु क्या किसी प्रतिवाद करून क्या किसी कहून केवल सहन कर चलते। तेणु जी जहाँ कहला प्रति जपरी अत्याचार कला से सब सहन कर जाऊले, कारण से भावुले ये सब मोर शरीर प्रति हो, मोर आत्मा यह द्वारा प्रभावित हो। तेणु शरीर प्रभावित है आत्मा प्रभावित हवा आवश्यक नहीं, जेहेतु से आत्मचेतना थे भरत, जड़ भरत एवं आत्मचेतन रही कौन करुले ना परम चेतन परमात्मा भगवान का कृष्णकर ध्यान करुले। सब समय अंतर भगवान कृष्णकर ध्यान करुले। तेणु बाह्य रूप से जिते अत्याचार शरीर प्रति हेले से विचलित हो। तेणु यहीपरि भाव में भ्राता माने जड़ भरत को कृषि कार्य जो नियोजित करुले, तेणु जड़ भरत दिन सारा कृषि क्षेत्र में रहती एवं रात्रि काल से फसल अन्न वन्य जीवजंतु मान खाईजे बोली से जगी था। तेणु गोटे मंचा करी मंचा उपरे बसी से राति सब जगी था वन्य जंतु को कबलरू शस्य को रक्षा करने। तेबे दिने जने डकायतर सरदार जे कि शूद्र कूल उत्पन्न, तेणु से डकायत सरदार से पुत्र प्राप्ति उद्देश्य रे भद्रकालींकर पूजा करने को चाहूला एवं भद्रकाली निकट में मनीष पशु को बलि देवाई चाहूला। मनीष पशु कहले जो मनुष्य पशुपरी मंद बुद्धि संपन्न से मनुष्य पशु कह जाए। जपरी पशु मानकर मंद बुद्धि से केवल आहार निद्रा भय मैथुन व्यतीत अन्य किसी जानते। तेणु जो मनुष्य मंद बुद्धि संपन्न सेपरी मनुष्य मान को पशु कह जाए। तेणु सेपरी व्यक्ति को भद्रकाली निकट में बलि देवाई से चाहूला। तेणु तार डकायत सरदार तार जो अनुचर सब रही डकायत माने तांको एपरी जने व्यक्ति को संग्रह करने प्रेरणा कला। से माने धरी आनी जने मंदबुद्धि संपन्न व्यक्ति को भद्रकाली निकट में बलि देवाई, किंतु से व्यक्ति कौन प्रकार खसी चलीगला। तेणु डकायत सरदार आदेश देला जे तुम्हें से व्यक्ति को खोजिक आण। तेणु अंधकार रात्रि रे सब डकायत माने खोजी बुलुछंती से व्यक्ति को जहाँ को बलि देवाई आनी। से माने बुली बुली आउ केउठारे से व्यक्ति को प्राप्त हेले ना। शेष से माने यही स्थान में पहुँचले जो जड़ भरत कृषि भूमि को जगी रही। तेणु से देखिले जे जड़ भरत ये मूक बधिर एवं अंधपरी आचरण कर शरीर बहुत हृष्टपुष्ट शरीर तंकर
ତେବେ ଜଡ଼ ଭରତ ଇଏ କେବଳ କୌପିନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ପବିତ ସେ ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ସ୍ନାନ କରୁନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଶରୀର ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆତ୍ମଚେତନାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସବୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଚେତନାରେ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଭରତ ଶରୀର ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଡକାୟତ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଲୋକମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି, ତାକୁ ଧରି ନେଲେ। ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିଛି, କୌଣସିଠାରେ କ୍ଷତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଧରି ନେଲେ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଡ଼ ଭରତ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେ ଭକ୍ତ, ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯଦିଓ ଜଡ଼ ଭରତ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଡକାୟତ ସର୍ଦ୍ଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଜାନିହି ନମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଦୃଢ଼ତା ପୂର୍ବକ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତର କେବେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପରି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଅସୁର ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅପରାଧ, ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅପରାଧ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନରେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିପାରିନଥିଲା। 5 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ସେ ବଧ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି, ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ 5 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଏ ବାଳକ, ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ କେବେ ଭୟଭୀତ ହେଉନି। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବାଳକ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ବାଳକ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଚିତ୍କାର କରିବ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ।
किंतु 5 वर्षर बालक प्रहलाद से भयभीत नुहति निजर प्राण संकट उपस्थित हेले मध्य से भयभीत होना। तेणु हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित होगला जे बालकर एत शक्ति से केउठारु प्राप्त होछि से भयभीत नुहे मृत्यु पाई सारा संसार भयभीत किंतु 5 वर्षर बालक प्रहलाद भयभीत नुहे। तेणु हिरण्यकशिपु प्रश्न करुछि प्रहलाद महाराज जे प्रहलाद तू एते शक्ति केउठारु प्राप्त होउछ जो शक्ति बल रे तू मते भय करुनु। हिरण्यकशिपु निजे तरबारी उत्तोलन करिछि प्रहलाद महाराज को वध करिया किंतु प्रहलाद महाराज जेतु भयभीत नुहति हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित प्रश्न करुछि प्रहलाद महाराज तू एते शक्ति केउठारु प्राप्त होउछ। प्रहलाद महाराज कहउछन्ति राजन आपण जहांगे ठारु शक्ति प्राप्त ही एते बलशाली होइछन्ति त्रिपुर विजयी होइछन्ति मु मध्य से भगवान ठारु शक्ति प्राप्त होउछ। तेणु आपण शक्तिर जे उत्स से मो शक्तिर मध्य उत्स। तेणु हिरण्यकशिपु प्रश्न कला जे जदि तू तोर भगवान ठारु शक्ति प्राप्त होउछु तोर भगवान केउठारे असंति। प्रहलाद महाराज उत्तर देले जे भगवान सर्वत्र विद्यमान समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करुछन्ति। तेणु भगवान सर्वत्र प्रति अणु परमाणु रे मध्य विद्यमान से सर्वव्यापी। हिरण्यकशिपु प्रश्न कला जदि तोर भगवान सर्वव्यापी ताहले तोर भगवान कण सभागृह स्तंभ रही। प्रहलाद महाराज कहले अवश्य रही। तेणु प्रहलाद महाराज उक्ति को मिथ्या प्रमाणित करने हिरण्यकशिपु आघात कला मुष्टिका आघात स्तंभ उपर एवं भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज कथा को सत्य प्रमाणित करने जैसे सर्वत्र विद्यमान से स्तंभरु प्रकट हो गए एवं प्रकट ही हिरण्यकशिपु को वध कल। तेणु भगवान जो प्रतिज्ञा करिसेंति जे मोर भक्तर केबे विनाश हेब नाही। तेणु जो भक्त माने भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील भगवान से मान को सुरक्षा प्रदान करते जेपरि प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान करते। तेणु जड़ भरत से मध्य भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील जदियो से जानुछंती जे दस्यु माने डकायत माने एमाने मते बलि देवा पे नौछंती भद्रकाली निकट रे किंतु जड़ भरत भयभीत ही नाहंती बा आत्मरक्षा पाई कौन सी चेष्टा करी नाहंती। तेणु दस्यु माने जेतेबेले जड़ भरत को नहीं भद्रकाली निकट रे पहुंचले सेतेबेले प्रथमे से माने जड़ भरत को स्नान करेले स्नान करई तांको नूतन वस्त्र प्रदान कले परिधान करिया पे ता सहित तांके शरीर रे चंदन तिलक आदि लेपन कले एवं पुष्पमाला रे तांकर गलादेश को सुशोभित कले आउ उत्तम खाद्य प्रदान कले तांको खाइबा पे जेहेतु बलि देवा पे जाउछंती तेणु उत्तम खाद्य प्रदान कले एवं भद्रकाली निकट रे जेठारे जूपकाष्ठ रही था जेठारे बलि दिया जाए सेठारे तांको बांधी कर रखिले पशुपुरी
तापरे से दस्यु मान भितर जड़े जे कि पुरोहितर कार्य करुला से भद्रकालींकर पूजा आरंभ कला। तेणु भद्रकाली को धूप दीप नैवेद्य आदि प्रदान करी शेषरे से बलि देवाई अत्यंत तीक्ष्ण तरबारी उत्तोलन कला से दस्यु पुरोहित। तेणु जितेबाला तथापि जड़भरत कौन से प्रतिवाद करूना से भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील होती। तेणु जितेबाला से दस्यु पुरोहित तीक्ष्ण तरबारी उत्तोलन करुच्ची भद्रकाली को निकट में जड़भरत को बलि देवाई से हठात गोटे विस्फोरण है। एवं भद्रकाली मूर्ति रही से विस्फोरण हो भद्रकाली मूर्ति फाटीगला पूरा दुई खंड हो एवं से मूर्ति मध्य स्वयं भद्रकाली बाहरी आसिले। कारण जेते सब देवता मान रही आम गतकाली आलोचना करुले जे एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो भगवान कृष्ण होचंती एकमात्र ईश्वर परमेश्वर, अन्य माने समस्त तंकर सेवक, समस्त देवादेवी समस्त भगवान कृष्णकर सेवक। तेणु भद्रकाली मध्य भगवान कर सेवक सेविका। तेणु भद्रकाली भगवान कर जड़े भक्त जड़ भरत जहाँ को बलि देवाई दस्यु माने आनिछंती भद्रकाली सहन करि पारले। जे भगवान कर जड़े भक्त कोई माने बलि देवाई आनिछंती तेणु भद्रकाली सेमान ऊपर क्रोध प्रकाश कले। कारण भगवान कर भक्त मान कर रक्षा करिबा ये होची समस्त देवता मानकर कर्तव्य। कारण समस्त देवता माने मध्य भगवान कर भक्त। तेणु अन्य भक्त को रक्षा करवा सेमानकर कर्तव्य, भक्त को साहाय्य करवा सेमानकर कर्तव्य। तेणु भद्रकाली निजे बाहरी आसी जड़ भरत को रक्षा कले। से निजर सिंहासन तल को लम प्रदान करी जो तरबारी दस्यु पुरोहित धारण करथिला बलि प्रदान करिया पाई जड़ भरत को सही तरबारी रे से प्रथमे तार मस्तक छेदन कले। एवं जेते सब दस्यु सरदार सहित जेते सब दस्यु माने सेठारे उपस्थित थिले भद्रकाली समस्तंकर शिरछेदन करी सेमानकर रक्त पान कले। केवल एकाकी नुहे निज गणमान के सहित। एवं समस्त भद्रकाली तांकर जो गण मान रही समस्ते परि रक्तपान करी सेमाने सेठारे नृत्य गीत आरंभ कले। एवं जो दस्यु मानकर मस्तक पड़ीथिला से मस्तक को जेपरी पिला माने बॉल खेलती से सब खेलने को आरंभ कले। तेणु यहीपरि भाव
भद्रकाली जड़ भरतर जीवन रक्षा कले, निजर भक्त मान को हत्या कले। एमान सब भद्रकाली भक्त थे। तार अर्थ जेते सब देवता मान रही से माने तांकर केवल भक्ति कले जे से माने हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे ता न। जदि आम कौन वैष्णव भक्तों चरण में अपराध करुचे, तांकर जीवन प्रति आम विपद सृष्टि करुचे, ताहले आमर आराध्य देवता माने मध्य हमको क्षमा करेंगे। तेणु भद्रकाली जड़ भरतर जीवन एपरी भाव निजर भक्त मान को बध करी तांकर जीवन रक्षा कले। तेणु एथुरु हमको गोटे शिक्षा प्राप्त होची जे अनेक समय लोक माने विभिन्न देवादेवी मानकर पूजा करथांती, विभिन्न भौतिक कामना को तृप्त करबा पाई, किंतु सेमान को जिते कहा जाए भगवान कृष्णकर भक्ति करबा पाई सेमाने टिके द्विधारे पड़ी थांती। सेमाने भावंती मु अमुक देवतांकर पूजा करुची, घरे रखी मु पूजा करुची, मु जदि कृष्णकर पूजा करी ताहले मु जो देवतांकर पूजा करुची बा जो देवींकर पूजा करुची से मो उपरे क्रोध प्रकाश करिवे। अनेक एभली प्रश्न मध्य करथांती, किंतु ए प्रसंगरु आमे जानि परिबा जे जदि कहीं कृष्णकर भक्ति आचरण करुची, कारण समस्त देवता माने देवादेवी जेते अछन समस्त कृष्णकर भक्त। तेणु जदि कहीं कृष्णकर भक्ति आचरण करे ताहले सेपरी देवादेवी माने सेपरी व्यक्ति उपरे प्रसन्न होता, क्रोध प्रकाश करते ना। कारण क्रोध प्रकाश करी से भगवान कर क्रोधर शिकार हो पारे। जदि कौन सी देवादेवी कौन सी भक्त उपरे क्रोध प्रकाश करेंगे ताहले से माने भगवान कर क्रोधर शिकार है, भगवान तांको क्षमा करेंगे नहीं, तांकर वैष्णव अपराध हो। तेणु कौन सी देवादेवी कौन सी कृष्ण भक्त उपरे क्रोध प्रकाश करें ना, बरं से माने प्रसन्न हेबे। जदि आमे कृष्णकर भक्ति आचरण करुचे देवादेवी माने मध्य आम उपरे प्रसन्न हेबे, कारण से माने से भक्तिर कामना करुछंती। भगवान कृष्णकर भक्तिर कामना देवता माने मध्य करुछंती। तेणु जेते आमर 33 कोटी देवादेवी रही समस्ते कृष्णकर अधीन तांकर भक्ति आचरण कर। तेणु से माने भक्त मान को सहायक हेबे। तेणु आमे जेतेबेले कौन सी देवादेवी मंदिर को जाऊचे आमे देवादेवी मान को प्रणाम करिवा एवं तांके ठारू कौन आशीर्वाद भिक्षा करिवा, केवल कृष्ण भक्ति आशीर्वाद भिक्षा करिवा। कारण से माने हमको प्रदान करि परिवे कृष्ण भक्ति, तांकर आशीर्वाद आमर आवश्यक देवादेवी मानकर। तेणु आम तांको प्रणाम करिवा, तांके ठारू आशीर्वाद ग्रहण करिवा, किंतु पूजा करिवा कृष्णकर। थरे पार्वती देवी प्रश्न कले शिवं को, कहले प्रभु आपण कृपा करी कहतु कि संसार रे अनेक प्रकार पूजा रही, लोक मैंने विभिन्न देवादेवी मानकर पूजा कर, विभिन्न प्रकार पूजा रही। ये समस्त पूजा मध्य सर्वश्रेष्ठ पूजा कहार? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। जे कहार पूजा करवा हूँ सर्वश्रेष्ठ पूजा? पार्वती देवी शिवं को प्रश्न कर।
शिव पार्वती प्रश्न उत्तर देवाक जाई कहते आराधना सर्वेशा विष्णु आराधना परम। शिव कहते हे देवी समस्त पूजा मध्य भगवान विष्णुकर पूजा होची सर्वश्रेष्ठ पूजा। पुणी कहते तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम। कहते हे देवी भगवान विष्णु पूजा ठार आउ गोटे पूजा होची श्रेष्ठतर पूजा। से पूजाटी कौन ना तदीयानं समर्चनम। भगवान विष्णुकर बा कृष्णकर जो माने तदीय तांकर निज जन निज लोक भगवान कर निज लोक को माने भक्त माने। तेणु भक्त मानकर पूजा भगवान का पूजा ठार मध्य सर्वश्रेष्ठ बोली निजे शिव कहते। शिव भी जने भगवान कर परम भक्त पार्वती मध्य भगवान कर भक्त। पार्वती होचंती दुर्गा आ दुर्गांकर विस्तार रूप होचंती काली। तेणु से समस्त भक्त भगवान कर आ शिव ए शिक्षा दे सारी पार्वती को। तेणु दुर्गा वा काली कौन सी भक्त उपरे केवे क्रोध प्रकाश करें से जानी भक्त मान पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा। तबे एपरि भाव जड़ भरतर जीवन रक्षा कले काली। तेणु जड़ भरत जेहेतु भगवान को ऊपर पूर्ण निर्भरशील थिले तेणु भगवान रक्षा कले एपरि भाव जीवन। तेणु जड़ भरत एपरि भाव विचरण कर संसार भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील है एवं शरीर चेतनार ऊर्ध्वर रही आत्म चेतना रे कृष्ण चेतना रे एपरि विचरण करू करू से दिने सिंधु सौबीर प्रदेशर राजा रहुगण के सहित तंकर साक्षात है। तेबे ए प्रसंग आम आगामी काली आलोचना करिबा। महाराज रहुगण एवं जड़ भरत मध्य बहुत सुंदर वार्तालाप से बहुत शिक्षणीय विषय रही। तेणु आगामी काली आम से संबंध में आलोचना करिबा।